So once again, good afternoon, everyone. So today what we are doing is how to use the square of the numbers and the formula of squares, right? And what type of question IUQM and SMO will ask in this area, right? ये दो चीजों पर हम लोगों को आज वर्क करना है, right? So obviously, all we know that square of the number means when I have to find a plus b, the whole square, right? So all we know the formula is a square plus b square plus 2ab. I hope everyone knows this. Basic, the simple one. And if I'm writing a minus b the whole square, this will be a square plus b square minus 2ab, right? And a plus b the whole cube. What is that? A cube plus 3 a square b plus 3 ab square plus b cube, right? And so on, right? We can write down the formula accordingly, right? A plus b to the power, that's 4, right? So I hope you know this. A4 plus B4 plus 6A square B square plus 4AB cube plus 4A cube. ऐसे लिखो बेटा, आसान पड़ेगा, right? Very good, अच्छा याद है, beautiful. So कुछ basic formulas, and if I'm just writing the minus sign, I'm writing the minus sign. So for minus sign, we know that the formula will change to a minus b the whole square. So this will be a square minus 2ab plus b square, right? And similarly, a minus b the whole cube, right? The odd power of b will contain the minus sign, right? So obviously, right? Minus b cube plus 3 ab square minus 3a square b. Right. So these are the simple formulas, right? जो already आप सबके किए हुए होंगे, and we know this, right? So, right, if I'll start, right, कि ये basic formulas के साथ में एक formula जो सबसे important formula होता है, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. What is the formula for this? क्या formula है? कोई help करेंगे मेरे को? What is the formula for a cube plus b cube plus c cube minus 3abc? Anyone? तो सब याद है बेटा? Chase, yes. सर फॉर्मूला क्या है उसका? हाँ बेटा. सर a plus b plus c. Very good. a square bracket open a square plus b square plus c square plus Minus. minus bracket open ab plus bc plus ac bracket close. First and second formula इसका जो होता है, right? One of the most important formula. केवल इस क्वेश्चन से अगर मेरे को मौका मिल जाए ना, केवल इस क्वेश्चन से मैं करीब 2 से 3 लेक्चर केवल इसी क्वेश्चन पे मैं खत्म कर दूं. Right? One of the most important formula, and the second formula for this is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c by 2 into a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square. तो व्हाट आई एम डूइंग, क्यों ये फॉर्मूला आ रहा है? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इससे 2 से मैंने डिवाइड किया. 2 से जब मल्टीप्लाई किया, दिस इज कमिंग एज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, राइट? नाउ एक a स्क्वायर यहां से बोरो किया, b स्क्वायर लिया माइनस 2ab, सो दिस विल बी a माइनस b द होल स्क्वायर. ए स्क्वायर सी स्क्वायर को साथ में लिया, ए माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर, राइट? ये प्लीज 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 ये दोनों पहले तो फॉर्मूला को एकदम तुरंत याद करके खत्म करेंगे हम लोग, राइट? फिर इस पर बेस हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे.
Okay. A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. The one of the factor is A plus B plus C and other factor is थोड़ा सा बड़ा सा ये factor है A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA, बट यूजफुल मेरे लिए ये होता है क्योंकि ये होल स्क्वायर का सम आ रहा है A माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर. Right? Condition on this, right? What is the condition? If दो बातें अलग अलग चलती है, राइट? दोनों को इन इनवर्स केसेस वी हैव टू सी दिस केयरफुली. तो अलग अलग क्या बातें हैं, राइट? दोनों को हम लोग एक बार वी कैन सी इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब minus 3abc is equal to 0, right? If I'm writing a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc or a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0, right? So if a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, then क्या होना चाहिए बताओ तो? क्या conditions होने चाहिए? So then A is equal to B is equal to C. Very good. One of the condition is a is equal to b is equal to c, and the second condition? And the second condition is a plus b plus c is equal to c. दोनों कंडीशंस होंगे हमारे पास. अगर मेरे पास केवल ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू राइट डाउन इधर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे पास यहाँ से आया. सो ये जो मेरे पास टर्म आए हैं, अगर मैं इसे 0 लिख रहा हूँ, मीन्स या तो ये जो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 होंगे या स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 0 होगा. क्या ये पॉसिबल है स्क्वायर का सम 0 हो? स्क्वायर का सम 0 होने का केवल एक ही तरीका होता है, ईच एंड एवरी टर्म विल बी 0, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों कंडीशन लिखे. दिस इज फर्स्ट वन. लेकिन इन रिवर्स वे इसे नोट करेंगे, फिर बताऊं मैं रिवर्स वे में क्या जाएगा. सर मतलब इन दोनों में से आइदर ऑफ देम होगा ना, दोनों नहीं हो सकते. दोनों मतलब हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, वो भी तो काम करेगा ही, नहीं? हाँ यस सर. वो भी काम कर सकता है, राइट? ओके. ओके सर. Right? If I'm saying if a plus b plus c is equal to 0, अगर मैं a plus b plus c को 0 कर दूं, तब क्या होगा बताना? Then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. यहाँ के लिए ये कंडीशन जाएगी, राइट? ओके. ओके एवरीवन, यस सर. राइट? सो लेट्स सी ना. ये फॉर्मूला के बाद में इस पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूं, राइट? फर्स्ट, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब, ध्यान से देखना ना, छोटा सा चेंज के साथ में क्वेश्चन दे रहा हूं, सो केयरफुल एवरीवन. प्लस 3ab इज इक्वल टू 1, फाइंड पॉसिबल वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a प्लस b. a प्लस b की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या और भी वैल्यू या वैल्यूज दैट यू हैव टू फाइंड. एक बार सोच के देखो. केयरफुल ना. सर 1 या वेरी गुड बेटा. 1 या -2. नॉट बैड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर.
बहुत अच्छा बेटा, सर -2। वेरी गुड। दो पॉसिबिलिटी है, देखना मैं तुरंत ऊपर में लिखा है हमने। हाँ, दो पॉसिबिलिटी है बेटा, दोनों को यूज करने हैं आपको। प्रसन्न हुआ बेटा? झील? हाँ सर, 1 और -2। Okay, since this we can rewrite as a cube plus b cube minus 1 is equal to minus 3ab. Is this okay? क्या अमोघ? वो तो हम Yes. सी को माइनस वो तो हम सी को -1 अज्यूम कर लेते हैं, तो A प्लस B प्लस वेरी गुड। प्लस माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू 3ab एंड माइनस वन। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो यहाँ पर दो केसेस आएंगे, इधर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सो फ्रॉम फर्स्ट केस आई एम गेटिंग a plus b is equal to 1. From second case I am getting a plus b is equal to -2. Very good everyone, बहुत अच्छे। This is simplest way to just find the values, right? कि एक simple question कि एक basic formulas पर formula है and basic formulas को how you have to use. Okay everyone, देखना धीरे 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 क्वेश्चंस के रेंज बढ़ते जाएंगे। सो जहां पर भी आपके डिस्कम्फर्ट होंगे वहां आपको बताने हैं ना। बेसिक फॉर्मूला से हम लोगों ने स्टार्ट लिया है, राइट? ओके, कोई पूछना चाहोगे कुछ इसमें? प्रसन्न, इज दिस ओके बेटा? क्लियर है ये? Yes, sir. झील, क्लियर है बेटा? Okay, okay. See, now, so if I am giving you a is equal to cube root of 4 plus cube root of 2 plus 1, okay? ये तीन वैल्यूज मेरे पास गिवन है, राइट? क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ, ठीक है? नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ 3 by a plus 3 by a square plus 1 by a cube. This is again the direct formation, direct formula. एक बार जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं करके दिखाता हूं। सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके बेटा, अमृत आज हो गया क्या? डन? ओके। पुरंजय? सर 2 में। ओके,
जयेश डन बेटा? कैलकुलेशन खत्म। Okay, good, 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 good. Very good. Jeel, very good बेटा, बहुत अच्छे। अगर सॉल्व हो गया ना, देखना ध्यान देना बात पे, अगर सॉल्व हो गया मान लो ना, कोशिश करो कि व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड। ये क्वेश्चंस में ना, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सीखने की ये है ना, क्या मैं कोई दूसरा मेथड भी यूज कर सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है, या जो फॉर्मूलाज हमने अभी लर्न किए हैं क्या वो यूज हो जाए। जयेश वेरी गुड बेटा। प्रसम ट्राई हुआ बेटा? कुछ हिंट दूं मैं? हिंट दूं? हाँ चलेगा सर। अगर मैं इसे रीराइट करूं ऐसा कुछ, a-1 माइनस को प्लस ऑफ माइनस 2⁻⁴ प्लस ऑफ माइनस 4⁻⁴ इज इक्वल टू 0। तो इसे मैं एज्यूम करता हूँ ये a है, इसे एज्यूम करता हूँ b है, इसे एज्यूम करता हूँ c है। सो सिंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट, एक तरीका तो यहाँ पर हो सकता है a प्लस बी, ये फर्स्ट मेथड। चलो और मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मैथमेटिक्स यहाँ पर इनहेंस करवाता हूँ, राइट। इसी क्वेश्चन को मैं कोशिश करता हूँ 3-4 मेथड से सॉल्व करके दिखाने का, जिससे यू नो कि एक्चुअल में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन आई कैन राइट a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, राइट। a³ is nothing but a-1 the whole cube minus b³ is 2 minus c³ is 4 is equal to 3abc। a-1 मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, 2⁻⁴ 2⁻²/3 4⁻⁴ को मैंने 2⁻² लिख दिया। हाँ एक ही बात है। अगर मैं दोनों पावर को यहाँ पर देखूं तो 1/3 एंड 2/3, तो 2⁻⁴ 2⁻²/3 दोनों मिला दो तो 2⁻³ दैट्स 1, दैट्स 2 ओनली, राइट। तो मेरे पास ये आ गया a-1 द होल क्यूब माइनस 6 इज इक्वल टू 3 a-1 एंड दिस नंबर इज 2 ओनली। अब इसे ओपन करके देखो, शायद हो सकता है आपको जो चाहिए 6a माइनस 6, शायद ओपन करके देखो, शायद आपको जो चाहिए वो आंसर ही आ जाए, राइट। दिस इज वन मेथड, राइट, वन ऑफ द मेथड। अभी मैं इसी पर और मेथड को भी मैं आगे करता जाऊंगा ना। फर्स्ट मेथड, जयेश आपने क्या मेथड लगाया? सर मैंने होल क्यूबिंग किया सर, ताकि सब कुछ वेरी मिडिल गुड, में था। वो भी सेकंड मेथड वो करता हूँ। जील आपने क्या मेथड लगाया बेटा? जील कौन सा मेथड लगाया आपने? कैमरा अपने ऑन रखो सभी लोग। अमोघ, पुरंजय, जयेश, स्विच ऑन योर कैमरा। जील स्विच ऑन और कैमरा। आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी, जील। जील एक बार चेक करो अपनी तरफ से बेटा, उसमें आवाज नहीं आ रही है, राइट। तो सेकंड मेथड में जैसे जयेश ने बोला, ये बड़ा प्यारा सा मेथड ये भी हो सकता है। इफ आई एम राइटिंग a-1 is equal to 2⁻⁴ plus 4⁻⁴ cubing both side, a-1 whole cube 2⁻⁴ plus 4⁻⁴ the whole cube, right। फिर से ये क्यूब, a³ minus 3a² plus 3a-1 is equals to, this is 2 cube, 4 cube is 4 plus 3 into 2⁻⁴ 4⁻⁴ into दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 2 ओनली। और ये वाली नंबर मेरे पास गिवन है a-1, a³ minus 3a² plus 3a-1 is equal to 6 plus 6 times of a-1,
फिर से वैसा ही नंबर आ गया आपके पास जो पहले से था। सर ये क्वेश्चन असल में आपने अंडर रूट के टाइम पे दिया था, जब अंडर रूट का वो आपने असाइनमेंट दिया था ना। हम्म अब अंडर रूट की जगह पर ये क्वेश्चन हो गया क्यूब रूट पर। हाँ, बट दिस इज द सेकेंड मेथड, राइट? कोई और मेथड किसी ने यूज किया हो? जिले आपने क्या यूज किया? आवाज आ रही है अब आपकी? एक बार ट्राई करो। सर ए क्यूब माइनस 3a² माइनस 3a इक्वल्स टू 1 आ रहा है, उसके आगे क्या करना है सर? उसके आगे समझ नहीं आ रहा। के आगे ये करना है बेटा, ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 6a माइनस 6, 6 कैंसल, 6a को इधर ले आया, ए क्यूब माइनस 3a² माइनस 6a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 6a प्लस था तो ये माइनस 3a हो, ठीक है। So this I can write a cube is equal to 3a² plus 3a plus 1. a cube से दोनों तरफ डिवाइड किया, 1 is equal to 3 by a plus 3 by a² plus 1 by a cube. I hope यही आपको लाना था, ओके सर। राइट? ब्यूटीफुल तरीके से नंबर आ गया, राइट? सेकंड मेथड ये। और कोई कुछ अप्लाई कर सके? दोनों तरफ क्यूब किया, वेरी गुड वेरी गुड। अमराज और कुछ बेटा आप ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर एकदम रॉ हम लोग सोचे कि नहीं और क्या पॉसिबल होगा, ध्यान से देखना सब लोग, शायद ये आपको मेस्मराइज करे ना। ए दिया हुआ था 1 प्लस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3। वन को वन का क्यूब रूट भी लिख सकता हूँ बेटा एक क्यूब, लेकिन वो यूज और एक नहीं। देखो मैं एक उपाय करता हूँ, शायद आपको बड़ा पसंद आएगा ये, ध्यान देना सब लोग। मैं दोनों तरफ ध्यान देना, नंबर को खेलना हमें सीखना है, राइट? और ये धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे। क्या मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों तरफ मैंने +1 कर दिया, राइट? a plus 1 is equal to 1 plus 1 is 2 plus 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3, राइट? अब ये जो नंबर मेरे पास आ गए हैं, राइट, ये नंबर में एक चीज तो अच्छा दिख रहा है, ये 2 है, ये 2 to the power 1/3 2 to the power 2/3, राइट? इसमें एक बहुत मजेदार सा बात ला सकता हूं मैं, क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है ना सर इस पे? मैं, हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे से यहां से 2 to the power 1/3 कॉमन ले लेता, राइट? 2 से मैंने 2 to the power 1/3, फर्स्ट वाले से मैंने 1/3 पावर कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे? सर 1 प्लस 2 2 टू द पावर 2/3 टाइम्स 2 टू द पावर प्लस, प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 1/3, जो एक ही वैल्यू आ रही है। वेरी गुड, अरे वाह। तो ये जो वैल्यूज मेरे पास आई, ये कौन सा है? क्या ये देखा हुआ लग रहा है? हाँ है। कौन सा जो ऊपर में है, कौन सा? ये ऊपर में क्या था? ए। मतलब मेरे पास आ गया a plus 1 is equal to 2 to the power 1/3 into a। आर यू गेटिंग दिस? समझ में Yes, आ रहा है ये? अब मैंने yes, sir. a से डिवाइड किया, a plus 1/a is equal to 2 to the power 1/3। अब क्यूब करने में मजा आएगा, कैसे? 1 plus 1/a the whole cube is equal to 2, right? ओपन किया, 1 plus 3/a plus 3/a² plus 1/a cube is equal to 2। 2 minus 1 कर दिया, जो आंसर चाहिए था। आई होप ये मेथड भी आप लोगों को पसंद आया होगा। थर्ड, राइट? ठीक है ना? ओके। यस सर। हाँ, थोड़े से चेंजेस में आपको नंबर्स को कैसे आप प्ले कर पा रहे हो, राइट? एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? जी,
बेटा एक बार आवाज नहीं आ रही तेरी। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखो a इज इक्वल टू मेरे पास गिवन था, ये जो फंक्शन था हमारे पास ये, ठीक है ना। मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया, +1 करने पर ये 1 जो था वो कन्वर्ट हो गया 2 पे, राइट। अब ये 2 पर जैसे कन्वर्ट हो गया तो मैंने कहा कि बेसिस सबके सेम हो गए, एक 2 है, एक 2⁻1/3, एक बार एक 2⁻2/3 है। तो मैंने ये पूरे के पूरे सिस्टम से 2⁻1/3 मैंने कॉमन लिया। 2⁻1/3 कॉमन लिया तो फर्स्ट आई एम गेटिंग 2⁻1/3, राइट। अगर मैंने कॉमन लिया तो 2 से अगर आप 1/3 पावर कॉमन लेते तो, राइट, 2 से पावर 1/3 कॉमन लेते हो तो बचेगा क्या, 2⁻2/3, यही दोनों मिला के 2 हुआ था, राइट। तो फर्स्ट से यू आर गेटिंग 2⁻2/3। सेकंड से ये पूरा नंबर 2⁻1/3 था, इस पूरे को ही मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1। थर्ड से मैंने ये कॉमन ले लिया, 2⁻2/3 से कॉमन लिया 1/3, तो 2⁻1/3। ये पूरा जो नंबर है ये पहले से जो मेरे पास नंबर था वही नंबर है। कौन सा नंबर, ए। अमोक, ठीक है बेटा, यस सर। राइट। डायरेक्टली उसे यूज किया, ये ए आ गया, ए को डिवाइड किया, एंड उसके बाद तो रेस्ट यू नो कि उसके बाद तो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, मैंने दोनों तरफ क्यूब करते ही आंसर पे ले आए, राइट। ओके। यस सर। अब एक क्वेश्चन इस बार एकदम, ये आप लोगों की बारी है, एकदम ध्यान से ये क्वेश्चन देखना, ये सबसे होना चाहिए, राइट, तब लगेगा कि हाँ हम लोगों का काम बनना शुरू हो गया। 2 + √5 क्यूब रूट प्लस 2 - √5 क्यूब, x इज इक्वल टू ये गिवन है, राइट। फाइंड वैल्यू ऑफ x। आंसर बोलना नहीं है इस बार, चैट पे लिखना है, राइट। तो क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी बेटा, सॉल्व करके ना, हाँ। सिंप्लीफाई करना है इसको। बेसिक फॉर्मूला पर ही है, राइट।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जय जय, दोनों लोग चेक करो बेटा एक बार फिर से। दोनों का आंसर तो साथ में आया है, बट चेक करो एक बार फिर से। चेक कर लेते हैं। हम्म। जी वेरी गुड, एक बार चेक करो फिर से आप भी। प्रसम आगे बेटा, वेरी गुड। एक बार चेक करेंगे बेटा आप भी। अमोघ, अमृत, और सर वो कैलकुलेशन एरर था, रीसेंड कर दिया। गुड 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 गुड। जय इज गुड। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपके पास दो मेथड है। अगर आप ध्यान से देखो, अभी ऊपर में जो किया था वहीं से आप यहाँ पर भी काम कर सकते हो, राइट। मैं स्टार्ट करूं क्या? यस सर। ओके, अटेम्प्ट हो गए हैं सबके ना? सी, वेरी गुड। काफी लोगों के आंसर सही है। मैंने चेक करने को इसलिए बोला कि आप कॉन्फिडेंस अपना हाई रखे कि नहीं, हाँ, कि अगर कुछ गड़बड़ है तो वी कैन हैंडल दिस, राइट। एक तरीका तो सिंपली आपको दिख रहा है, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया, राइट। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए बी मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज 4-5 इंटू ए प्लस बी करूंगा तो वो x आ जाएगा, राइट। तो दिस इज x क्यूब इज इक्वल टू √5 कैंसल आउट 4 माइनस 3x। सो x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 4, और we can rewrite this as x cube। सर उसका 4 - 5 का रूट कैसे हटेगा सर? मतलब वो रूट तो रहेगा ना? पावर 1/3 तो वही रहता है ना बेटा, हाँ पावर ओके। 1/3 हाँ रहेगा। वही वही हाँ, बोल रहा ऑड था। ऑड पावर है ना, तो ऑड पावर से कोई फर्क माइनस को पड़ेगा नहीं ना, यस सर। राइट। सो ये आ गया मेरे पास, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x क्यूब -1 प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। मैंने फैक्टर कर दिया, जो 4 मेरे पास नंबर था उसको थोड़ा सा प्ले कर लिया। एक 1 दे दिया मैंने x क्यूब के लिए, और एक मैंने दूसरे वाले को दे दिया। ये स्टेप में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, राइट। ये स्टेप पे पहुंचने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड, जब मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया है, राइट। नाउ x-1 इज वन ऑफ द फैक्टर फर्स्ट वाले से, तो बचेगा क्या? x² प्लस x प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इफ यूल सी दिस इज x-1 एंड ये आ गया x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली एक वैल्यू तो x इज इक्वल टू 1 है जो रियल वैल्यू है। अगर ध्यान से देखो तो ये इमेजिनरी वैल्यूज है। इज दिस ओके? दूसरा मेथड भी बताऊं क्या? पहले इसको देख लो एक बार, राइट। तो सर x इमेजिनरी क्या होता है सर? इमेजिनरी होता है बेटा कि जब हमारे पास ना कोई नंबर आ जाता है -4 का अंडर रूट आ गया, राइट। कोई भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट। कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर अंडर रूट आ गया, 1/4 पावर आ गया ना, ऐसे पावर जब आ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, राइट। इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो, राइट। इनका अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, राइट, नंबर्स को, तो उसमें काफी अच्छा इसका यूज होता है, राइट। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के लिए। ओके ओके यस ओके सर। ना। और सर हमने उसमें +3 क्यों किया? +3 वो कॉमन आया था ना बेटा, 3 यहाँ से, ओके सर। ये वाले नंबर से 3 कॉमन आया था ना, इसलिए मैंने लिया, हाँ सर, हाँ सर। राइट। तो दोनों ठीक है। एक याद होगा ये क्वेश्चन, राइट, आई आई गेस करवाया था लास्ट लेक्चर में, बट फिर भी एक बार देना बनता है क्योंकि वहां से भी मेरे को
a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus d to the power 4 is equal to 4a b c d, right? Then prove that a is equal to b is equal to c is equal to d, right? एक ये क्वेश्चन शायद लास्ट लेक्चर में भी हमने किया हो या लास्ट लेक्चर, इस तरह का एक क्वेश्चन देखे तो ट्राई करके। प्रसम ऑल ओके बेटा? ठीक है। Yes, sir. Right, a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus d to the power 4 is equal to 4a b c d, right? Then prove that a is equal to b। एकदम बेसिक फॉर्मूला से ऊपर मैं एकदम नहीं जा रहा हूँ, शुरुआत है अभी आपको के साथ में। सो राइट, आपको बेसिक सर वो होल स्क्वायर वाले मेथड से आपने किया था ना प्रूफ? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब उसको अप्लाई करने को याद करो, कैसे अप्लाई किया जाए। सर -2a² b² -2c² d² और फिर प्लस भी कर देंगे इक्वलाइज good. करने के लिए, वेरी और 4abcd को उस तरफ ले लेंगे। वेरी गुड। सी, एक बार देखना सब लोग ध्यान से ना, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 में मैं अपनी तरफ से राइट एक ऐसा नंबर दे दूं कि a² b² हमने इसमें माइनस कर दिया। सिमिलरली c टू द पावर 4 प्लस d टू द पावर 4 में 2c² d² मैंने माइनस कर दिया, प्लस 2a² b² प्लस 2c² d² इज इक्वल टू 4abcd। ये आ जाना चाहिए, राइट? नाउ Yes, what sir. we can write this as a² minus b² the whole square. What we can write this as c² minus d² the whole square, and see this one plus 2 common out, a² b² minus 2abcd plus c² d² is equal to 0. So overall what I am writing, a² minus b² the whole square plus c² minus d² the whole square plus 2 times of ab minus cd the whole square is equal to 0. अब ये पूरे टर्म जीरो है। में ध्यान दो, ये होल स्क्वायर का टर्म, ये भी होल स्क्वायर का टर्म, ये भी होल स्क्वायर का टर्म, 3 होल स्क्वायर का सम 0 आप आ रहा है। कैसे पॉसिबल होगा ये? और जब सब कुछ जीरो है। सब 0 हो नहीं, तभी तो पॉसिबल होगा कि हमारे पास होल स्क्वायर का टर्म है, होल स्क्वायर का टर्म है, होल स्क्वायर का टर्म है। और या सर ये इमेजिनरी नंबर जो जब ये रियल इमेजिनरी हमारे लिए, हम लोग रियल के लिए स्टडी कर रहे हैं तो इमेजिनरी यहाँ ले नहीं सकते। मतलब ये पॉसिबल होगा तभी जब a² इज इक्वल टू b², c² इज इक्वल टू d² और ab इज इक्वल टू cd हो जाए। सो दिस शोज दैट ऑल द क्वांटिटीज, मैं एकदम ध्यान देना, a³ b³ का फॉर्मूला, a² b² का फॉर्मूला, ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, हम उसी पर स्टिक कभी रहेंगे बेटा, और उनको जैसे जैसे डेवलप करते जाएंगे हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, राइट? ओके, डन एवरीवन? समझ आया सभी को? Yes, sir. वेरी Yes. गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट? सो नाउ अब एक क्वेश्चन में आगे बढ़ाऊं, राइट?
इसी ए बी जो स्क्वायर और इसके टर्म आ रहे हैं उसमें मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से देखना ना, केयरफुल। 2 to the power 8 plus 2 to the power 11 plus 2 to the power n is a perfect square. Find possible values, सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बेटा, of n. n की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कब के लिए? 2 to the power 8 plus 2 to the power 11 plus 2 to the power n is a perfect square. बहुत ही एलिगेंट क्वेश्चन, सो ध्यान से। वही बेसिक फॉर्मूला पर है, कोई नया काम आपको नहीं करना है, बेसिक फॉर्मूला पर स्टिक रहना है। क्या लगता है? अरे आंसर भी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं अमिताज, वेरी गुड बेटा। और भी हो सकते हैं पॉसिबल, ट्राई करो एक बार, और भी पॉसिबिलिटी है कुछ उसमें। यील्ड प्लानिंग करना, केवल मैं बेसिक क्वेश्चन रखा हूं, a+b होल स्क्वायर, राइट? जो हम लोगों ने शुरुआत के फॉर्मूलाज देखा है, a+b होल स्क्वायर, a³ + b³, बस उसी पर मैं स्टिक रहूंगा अभी, राइट? 2 और लेक्चर आपके पास रहेंगे इसी को डेवलप करने का, इनसे क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व होना चाहिए। पुरंजय, होना चाहिए बेटा क्वेश्चन। यस सर, 2 सेकंड। अमोघ, क्या सोच रहा है? बढ़ जा आगे, नाम लेके ऊपर वाले का, बढ़ जा आगे। प्रसन्न कहाँ गया बेटा? हाँ सर वॉशरूम गया था सर। हाँ अच्छा, हाँ लगा, थोड़ा जोर लगा इस पे। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला से इसे हम लोग को पिक करना है। कैसे पिक हो सकता है, दैट यू हैव टू सी। मैं स्टार्ट करूं? अमोघ, कुछ ये लगा ना, a+b होल स्क्वायर। देख, a+b होल सर स्क्वायर हुआ क्या सर, हो सकता है? हुआ सर कुछ हद तक। वेरी गुड, वेरी गुड। कहीं से हम लोग लगा सकें a+b होल स्क्वायर। तो 2 तो नहीं आएगा सर, सॉरी मेरा रॉन्ग आंसर है। वेरी गुड। ये जल्दी से पकड़ में आना भी बड़ी अच्छी बात होती है, राइट? कि एक पकड़ में आ जाए और वहां से हम लोग काम कर पाए। वेरी गुड अमृता, झील, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। प्रसम होगा बेटा, लगा थोड़ा। अमोक, चला चला, हाथ चला। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं, राइट? एटलीस्ट 2 मेथड तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, राइट? लास्ट 2 मिनट्स, फिर मैं देखता हूं। वेरी एक गुड, वैल्यू आ गई सर एन की। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जय, तो लाया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है। वेरी गुड।
वेरी गुड पसंद, वेरी गुड, नॉट बैड नॉट बैड। एक और ट्राई कर, एक और वैल्यू आएगी। चल लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो a प्लस बी होल स्क्वायर पे ही मैं प्ले करता हूँ इसे, सो मुझे एक चीज ये मालूम है कि अगर मेरे पास 2 टू द पावर 8 का टर्म है, 2 टू द पावर 11 का टर्म है, 2 टू द पावर 11 के साथ में एक प्रॉब्लम है कि ये किसी भी स्क्वायर का टर्म नहीं हो सकता, राइट? ये टर्म किसी भी स्क्वायर का टर्म नहीं हो सकता, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, 2 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इससे मेरे को एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बन रहा है कि अगर ये ए स्क्वायर हो जाए प्लस ये 2ab हो जाए प्लस ये बी स्क्वायर हो जाए, ये तीन टर्म पॉसिबल है, राइट? अब अगर मैं ए स्क्वायर के लिए 2 टू द पावर 8 को ले रहा हूं तो दिस इज 2 टू द पावर 4 द होल स्क्वायर, राइट? प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 4 ये चला गया। कौन से कितने टर्म बच गए मेरे पास बी के लिए? पावर टोटल 11 था, जिसमें एक 2 को मैंने पहले से निकाल दिया, टोटल पावर 6 हुए, पावर 4 दे दिया, तो दैट्स 6 ओनली, राइट? तो 2 टू द पावर n के लिए मेरे पास ऑप्शन बड़े अच्छे हैं कि मैं 2 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर कर दूं, राइट? सो दिस विल बी 2 टू द पावर 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 6 द होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं, दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहां से तो दिख रहा है मेरे को कि n की वैल्यू 12 मेरे को परफेक्टली मैच कर जाए, राइट? दिस इज वन ऑफ द मेथड, राइट? लेकिन हर बार इस तरह से कॉम्बिनेशन मैं बना सकूं या हर बार ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए, ये पॉसिबल आपके लिए शायद ना हो, राइट? ये इसलिए मेरे क्वेश्चन को आसान हो गया क्योंकि मैंने यहां पर जो नंबर आपको दिया था वो 2 टू द पावर जो था वो ऑड दे दिया था। अगर इसी क्वेश्चन को छोटा सा मैं चेंज कर देता, 2 टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 12 प्लस 2 टू द पावर n, इसके परफेक्ट स्क्वायर होने की बात अगर होती तो हमारे पास पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाती। आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं ट्राई करके बताऊं? ट्राई करेंगे आप लोग? वापस अच्छा, इसका भी अब ढूंढना है n की स्मॉलेस्ट परफेक्ट वैल्यू। स्क्वायर देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। यस सर। Sir, n has to be an integer. यस यस यस, डेफिनेटली, नहीं तब तो बहुत सारे गड़बड़ हो जाएंगे ना बेटा। वेरी गुड, अरे वाह, बहुत फास्ट आंसर आया। सर पिछले क्वेश्चन का ही वो ट्विस्ट हो गया ना बस। थोड़ा सा चेंज कर लो एक बार, और भी पॉसिबल केस हो सकते हैं क्या, सोच के देखो एक बार। क्या यही पॉसिबल है या इसके अलावा भी पॉसिबल हो सकते हैं? एग्जैक्टली उसी के लिए मैंने क्वेश्चन ही दिया है कि देखने में वैसा ही लग रहा है बट क्वेश्चन में चेंज आने के चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे आपको बहुत सारे। वेरी गुड वेरी गुड। विजय वेरी गुड। विजय कैमरा ऑन प्लीज। रुंजय वेरी गुड। टेक कैमरा ऑन प्लीज। अरे कैमरा ऑन करके बैठो यार, देखते रहे, सबको आसान रहता। रुंजय आपके कैमरा ऑन नहीं है बेटा। वेरी गुड। अमोघ वेरी गुड। और भी पॉसिबल होंगे आंसर क्या, या यही होगा? जीत हुआ, भेज दिया। गुड, यस बेटा विजय वेरी गुड, बहुत अच्छे।
राइट। तो हमारे पास अच्छे ये लाइक वेरी गुड, आप लोगों का अप्रोच अच्छा रहा इस बार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अगर मैं 2 to the power 8 यहाँ से कॉमन ले, एक तो ऊपर वाला ये आंसर हो रहा है, ऊपर वाला क्यों आंसर हो रहा है, तो यू नो दिस राइट। ये हो जाता है 1 + 2 to the power 4 + 2 to the power n - 8, ये लिख सकता हूं। अब ये मेरा फिक्स हो गया कि ये तो मेरा 1 है ही, राइट। अब ये जो दो टर्म है, अगर मैं इससे एडजस्ट कर लूं एक बार, ये कि ये मेरा a² हो जाए और ये 2a हो जाए, या ये मेरा 2a हो जाए और ये मेरा a² हो जाए। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। यही दो बातें हो सकती ना, या तो मेरा ये a² हो जाए, ये 2a हो जाए, तो ये कंप्लीटली दिस इज कमिंग एज a+1 ^ 2। अगर यहां से मेरे को वो फैक्टर बाहर निकालना ना बड़ा काम कर जाएगा, राइट। एंड ये मेरा हो जाएगा a+1 ^ 2, राइट। ये दोनों जो मेरे पास है, यहां से मैं वर्किंग अगर देखूं तो मेरे लिए बड़ा सिंपल सा काम है कि ये है 2² एंड दिस इज 2a, राइट। 2a, राइट, दिस वैल्यू इज a, सो दिस इज 2²। ये पूरी क्वांटिटी 2 to the power n - 8 होगा, वो 2 to the power 3 आ रहा होगा। यहां से n की वैल्यू आप लोगों ने 11 बोली, एक आंसर 11 आया क्या, Yes, sir. राइट। एक 11 आया। सेकंड आंसर भी आपको दिख ही रहा है अब यहां पर से, अगर मैंने 2a की वैल्यूज को पहले से ही रख दिया था 2 to the power 4, तो a की वैल्यू हो गई 2 to the power 3, राइट। ठीक है ना, 2 की पावर 3, राइट। और मुझे चाहिए था 2 to the power, ये सेकंड क्वांटिटी मेरे पास होगी 2 to the power मतलब a², राइट। तो a² = 2 to the power n - 8। ये इसी नंबर का स्क्वायर कर देता हूं, तो दिस इज 2 to the power 6, राइट। दूसरा नंबर भी यही आया था, राइट। तो n14 1. तो ठीक है ना, लेकिन अब इसमें तो आपको हो सकता था एक और कहानी हो सकती थी जो हम लोग मिस कर रहे हैं, कौन सी बताओ तो। एक कुछ और कहानी हो सकती थी जो शायद हमारी मिस हो रही होगी, कौन सी कहानी ये है। हो सकता है n की वैल्यू जो हो वो लोएस्ट हो, तो 2 to the power n मेरा कॉमन आ जाता, राइट। अब 2 to the power n कॉमन आता तो मेरे लिए एक नया पूरा का पूरा स्टोरी जाता, 8 - n 2 to the power 12 - n +1। गेटिंग दिस। अब यहां पर भी तो ये कहानी हो सकती, राइट। अगर मेरा इवन पावर है तब हमारे लिए चांसेस बहुत सारे अलग हो जाएंगे, ऑड पावर के लिए आपको चांसेस थोड़े आसान रहेंगे। लेकिन ओवरऑल सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखना ध्यान से। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों के लिए। सी 2 to the power 8 प्लस 2 to the power 11 प्लस 2 to the power n, राइट। ये तीन नंबर हैं और ये नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट दिस इज m², राइट। ये मेरे पास m² नंबर आ गया। इन दोनों नंबर को अगर आप देखो, राइट, ये नंबर क्या आ रहे हैं मेरे पास, मैंने 2 to the power 8 को कॉमन ले लिया, 1 + 2 to the power 3 + 2 to the power n = m²। सॉल्विंग आपकी मैथमेटिकल ये होनी चाहिए, राइट, कि कुछ भी गलत होने से मैं बच पाऊं। तब ये जाएगा 2 to the power n प्लस ये नंबर है 2 to the power 8 इंटू 8 + 1 9 को मैंने 3² लिख दिया = m²। ओवरऑल 2 to the power n = m² - 3 × 2 to the power 4 the whole square। Is this okay? Is this okay? Yes, sir. Right? अब मेरे को जो नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं 2 to the power n, मैंने कहा 2 to the power n दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, राइट। दो पार्ट जो होंगे, मान लेता हूं एक है 2 to the power s, दूसरा है 2 to the power t, राइट। दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, यही दो पार्ट यहाँ पर है, कौन कौन से हैं वो,
एक है m माइनस 3 इंटू टू टू दावर 4 जो टू टू दावर s है, दूसरा है m प्लस 3 इंटू टू टू दावर 4 जो टू टू दावर t है। यहां तक में किन्हीं को कंफ्यूजन या डाउट? यहां तक में क्या किन्हीं को कुछ भी कंफ्यूजन या डाउट हो रहे हैं? No. राइट? अमोक ठीक है बेटा, जील ठीक है, पसम, संजय, Yes, sir. यस सर। रियल मैथमेटिक्स में आप जंप कर रहे हो, राइट? क्यों कर रहा हूं ये पूरा का पूरा, इसको ध्यान देने की बात होगी आपको, राइट? अब ये पूरे केस में आपको आखिरी में देखो कैसे फंसाया जाता है नंबर को, राइट? ये हम लोग को सीखने की जरूरत है। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट, दिस माइनस दिस, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या आएगा, 6 इंटू टू टू दावर 4 इज इक्वल टू टू दावर s प्लस टू टू दावर t, राइट? इसे लिख सकता हूं 3 इंटू टू टू सर दावर, आपने ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट किया बेटा, हाँ सब्ट्रैक्ट किया दोनों, टू टू दावर t, ये माइनस यहाँ पर लगा, यहाँ माइनस पे ना, तो टू टू दावर t माइनस टू टू दावर s, ये आ गया, राइट? अब टू टू दावर s अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बनेगा टू टू दावर t माइनस s माइनस 1, राइट? अब ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, क्या मेरे पास काम निकल गया मेरा? हाँ सर। राइट? एकदम 1 to 1 मैच करेगा, सर तो फिर 12 आएगा ना? राइट? तो 1 to 1 मैच करेगा, मतलब ये 3 वाला नंबर जो है वो 3 इज इक्वल टू 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 दावर t माइनस s माइनस बन जाएगा, एंड टू टू दावर s की जो वैल्यू है वो टू टू दावर 5 जाएगी। s की वैल्यू 5 दिख रही है, एंड यहाँ से t माइनस s की वैल्यू मेरे P की पास वैल्यू 7 हाँ सर। 7 प्लस 5, जो हम लोगों ने आंसर में चेंजेस नहीं है, आंसर वही रहने हैं, लेकिन प्लीज इसको अच्छे से नोट करो, कहीं पर लग रहा हो कंफ्यूजन प्लीज आस्क। मैंने ये फिट कर दिया है पूरा पेज आपके लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा सॉल्व किया था, ये IUQM का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी गुड, बिल्कुल सही सॉल्व किया था। मैंने एक प्रॉपर तरीका बताया कि अगर कुछ चेंजेस भी आ रहे हो तब आप उसको हैंडल कर सकते हो। अमोक ठीक है बेटा, Yes, sir. गौतम समझ आया ना, हाँ सर। अभिजय ओके, सर उससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, 2 raised to 8 प्लस 2 raised to 12 प्लस 2n, उसमें n 7 भी आ सकता है ना? हाँ वो बताया ना बेटा, उसमें कुछ ना कुछ आपके छूटने के चांस रहेंगे, इसलिए करने का तरीका ये पूरा मैंने दिया आपको। ओके सर। केवल ध्यान दो, केवल ABC उसी पे नंबर्स पर कितने अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसको ध्यान दो। सर ये IUQM जैसे पेपर में काफी छोटे मोटे फॉर्मूला यूज होते हैं, पर जब तक वो लॉजिक आता है तब तक 10 मिनट हो जाते हाँ वो डेवलप कर लेंगे बेटा हम लोग, मतलब जितने हमारे पास टाइम है ना, अभी हमारे पास जितना टाइम है उतना डेवलप हो जाएगा कि आपको स्ट्राइकिंग रेट काफी बढ़ जाएगी, राइट? हो जाते हैं यूजुअली, जानते हो बहुत बड़ा वो हम लोगों के लिए नहीं रहता, हो जाते हैं, बट वही है बार बार रिग्रेस हम लोग को क्वेश्चन करते जाने हैं। मतलब 40 मार्क्स वगैरह एक सफिशिएंट हमारे लिए आसानी से निकाल सकते हैं अगर शुरू से हम लोग ध्यान देके रखे तो। ओके, डन एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट ध्यान दो, तो ये मैं स्क्वायर के टर्म को ही जो डील कर रहा था, राइट? एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से फ्रेम कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 14y प्लस 65 इज इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन
x इंटू वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, बट मैंने जो आपको बोला है मैं स्टिल आज पूरा उसी पर रहूंगा जो मैंने शुरुआत में बोला था, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट्स इट। वेरी गुड, वेरी गुड, एक आंसर तो आया, वेरी गुड, यस वेरी गुड। कुछ हिंट दूं क्या? अभिजय कुछ हिंट दूं बेटा? ट्राई करेगा, ओके। प्रसन्न, कंबाइन कर बेटा, नंबर्स को कंबाइन करो, एक बार कोशिश करो कंबाइन करने का, यू विल गेट समथिंग, बड़ा अच्छा सा नंबर आएगा आपके पास, कंबाइन करके देखो। सर वो कैलकुलेशन एरर था, वापस भेजो। ओ, मैं स्टार्ट करूं क्या? जस्ट ओके, जी लाया बेटा, नंबर को कंबाइन करो, नंबर को कंबाइन करो, आ जाएगा, सिंपल है। सी, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, आप खुद अरे हंस। एक मिनट बस, 1 मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम, एकदम सिंपल है, एक बार ध्यान से केवल नंबर को आपको देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, अमृतराज का लगता आ गया, वेरी गुड बेटा। सी, ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर एंड 8x, इसे मैं एक साथ लूं तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 4 होगा, वैसी बात है, 8 है तो मैंने 4 कर दिया। अगर मुझे इसे कंप्लीट स्क्वायर करना है तो मुझे अपनी तरफ से 16 इसमें ऐड करना होगा, लॉजिकल है। प्लस अगर y के लिए यही काम करूं तो वाई स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 7 हो गया, राइट। तो प्लस मुझे करना पड़ेगा 49, ये भी लॉजिकल है, राइट। तो हमने अपनी तरफ से जो प्लस किया है वो क्या प्लस किया है, 16 एंड 49, दोनों को ऐड करें तो
ये 65 होता, राइट। मतलब x plus 4 the whole square plus y minus 7 the whole square plus 65 is equal to 65। ओ, ये तो 65 ही कैंसिल हो गया। मतलब मेरे पास सिंपल नंबर आया x plus 4 the whole square plus y minus 7 the whole square is equal to 0, राइट। और दो होल स्क्वायर का सम 0 आने का क्या मतलब होता है? हाँ, कि x का वैल्यू वही होएगा और x y का minus 4 and y 7। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 7। मुझे क्या निकालना था? x क्यूब प्लस वाई क्यूब -4 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपॉन 7 इंटू -4। यू नो दिस, सिंपल था ना? वेरी yes. गुड। सर यहाँ मेरे को आया, लेकिन मेरे को लगा गलत होगा। क्यों? सर थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा था। नहीं चलेगा बेटा, मैंने जस्ट रैंडमली इसको नंबर मैंने खुद अभी तुरंत फ्रेम किया था ये क्वेश्चन, राइट। कि मेरे को था कि अब इसमें कुछ ऐसा करवाऊं कि आप लोगों को एक कंसेप्ट की क्लैरिटी दे पाऊं कि कैसे स्क्वायर को डील करते हैं, तो नंबर को कैसे प्ले करते हैं, राइट। लेकिन अगर इसी फॉर्म को, राइट, एक क्वेश्चन दिखाओ और इस तरह का, एवरीवन यस सर। रेडी रेडी रेडी। देखो, इसी फॉर्म को देने का अच्छा तरीका जो होता है वो होता है ये 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2b plus 3c the whole square. Find value of 2a plus 3b by 5c। देखो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर ये आपने लास्ट क्लास होमवर्क दिया था। हाँ, ये होल स्क्वायर है क्या? हाँ, राइट साइड में होल स्क्वायर। उत्कर्ष कैसा बेटा? Yes, I'm fine. गुड 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 गुड। कुछ नंबर में ऐसा है, थोड़ा सा ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। हाँ, टेक योर टाइम, उसके बाद मैं करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे एक बार चेक कर लो बेटा। सॉरी सर, शायद गलती से पोस्ट हो गया था, देखता हूँ। ये मैं नोट्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पर और इंस्टाग्राम वाली ग्रुप है उसमें डाल दूंगा बेटा, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हो ना।
मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 2 मिनट। ओके। प्रसन्न थोड़ा लगा जोड़ सा, हाँ, स्क्वायर करके आगे बढ़ाओ, थोड़ा कैलकुलेशन पे जाओ। झील थोड़ा आगे बढ़ाएगी बेटा, आएगा, आना चाहिए। सर ये लास्ट क्लास में किया था। हाँ हाँ, ये होमवर्क में दिया था मैंने। सीनियर वाले में इसका, इस पर बेस क्वेश्चन कुछ करवाया था मैंने, सीनियर वाले जो थे ना। तो हाँ यस सर। 3 बैचेज रहते हैं बेटा, 2 बैच, एक बैच ये रहता है, right, इससे सीनियर वाले एक होते हैं, और एक है जो आईओ क्यूब एंड आरएमओ कर चुके हैं, जिनका इनमो का चल रहा है, इनमो का तैयारी कर चुके हैं, जो इनमो में ठीक ठाक स्कोर आए हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। मैं स्टार्ट करूं? जी, माइक चेक करना, तेरा काम कर रहा है क्या एक बार? हाँ सर, अभी हो रहा है। क्या स्टार्ट करूं क्या? यस सर। ना जिल, बता बेटा क्या किया आपने? सर मैंने इसको ब्रैकेट्स को खोला, टू ए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करके। वेरी गुड। उसके बाद मेरा आंसर, मेरा इक्वेशन ऐसा आया, 2 into a² प्लस b² इंटू सी अपॉन ए प्लस b²। फिर राइट हैंड साइड पे, फिर उसको सॉल्व करने के बाद 2a+3b अपॉन 5c की वैल्यू 22 आ रही थी। ओके ओके, नॉट बैड। उत्कर्ष क्या किया आपने बेटा? सर मैंने इसको 2a - b द होल स्क्वायर प्लस 3a - c द होल स्क्वायर प्लस 3b - 2c द होल स्क्वायर के फॉर्म में लाया। वेरी गुड। कैसे सोचा ये? एक बार फिर से बोलना, सभी लोग सुनना सर चाहिए। ऐसा हर होल स्क्वायर आ रहे हैं सर, इतना समझ में आ रहा है कि होल स्क्वायर आ रहे हैं। आना चाहिए, मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा था तेरे को। सर वेरी होल स्क्वायर आ रहे हैं तो सर हमें हम और बी के कोफिशिएंट्स ऐसे आने वाले हैं कि दो स्क्वायर्स के सम हुए। वेरी गुड। और उसको किसी तरह से एडजस्ट होना चाहिए, तो तूने स्टार्ट किया एडजस्ट करने को। बहुत अच्छा सोचा। राइट। बट अगर हमें बेसिक से ही ले जाना हो ध्यान से ना, तो हमने क्या करना, नहीं मालूम क्या हो, तो स्टार्टिंग तो यही होगी, नहीं मालूम क्या होगा, तो क्या करूं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। कैसे आगे बढ़ूं? तो 14a² प्लस 14b² प्लस 14c² इज इक्वल टू a² प्लस 4b² प्लस 9c²। ये तो ठीक है। प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ ए बी के लिए मेरे पास आएगा a into 2b प्लस ट्वाइस ऑफ a into 3c प्लस ट्वाइस ऑफ 2b into 3c। इज दिस ओके एवरीवन? राइट। a² कैंसिल होगा तो ये बनेगा 13। 13 इज वन ऑफ द, मतलब अजीब सा नंबर नहीं है 13, लेकिन 13 को देख के एक बात याद आती है क्या? 13 जो होता है वो सम होता है 9 and 4 का। 13 जो होता है वो सम होता है 9 and 4 का। क्या हिंट मिल रहा है यहां से? 9 is 3² 4 is 2²। राइट। 9 is 3²। तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा जो मेरे को लॉजिकल जो लग रहा है, सर 9, क्या फाइंड आउट करना था सर? तो ये नंबर था ना बेटा, 2a+3b/5c। 4a² प्लस 4 कैंसिल करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10b²।
राइट 10b² को b² प्लस 3 स्क्वायर b² प्लस 9 ये 4 राइट 9 कैंसिल करूंगा तो कितना बच जाएगा ये 5c² जो होगा c² प्लस 4c²। सर आंसर पोस्ट हो गया सर, आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा। a प्लस 2b minus 2 into a into 3c minus 2 into 2b into 3c। राइट कुछ ऐसा आ रहा है। राइट नंबर के केवल अरेंजमेंट को आपको थोड़ा सा चेंज करना है। 9² प्लस b²। राइट राइट प्लस c² ये गिवन है 4a² प्लस मैं क्या 4a² प्लस b² के साथ में इसको अगर ले लूं क्या मैं लिख सकता हूं 2a माइनस b द होल स्क्वायर ये आएगा। आर यू गेटिंग दिस 2a माइनस b द होल स्क्वायर किसको किसको मैंने लिया 4a² को लिया राइट 2 इसको ट्रांसफर कर दिया 2a इंटू b हो गया। अब 9a² के साथ में क्या मैं c² वाले को लेके और 3 को इसको देने के बाद 3ac ले सकता हूं 3a माइनस c का होल स्क्वायर एंड बाकी बचा हुआ क्या है आपके पास 3b² एंड 4c² वो यहां जा रहा है राइट व्हाट इज दैट 3b माइनस 2c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ध्यान से रिलैक्स होके पहले इसको देखो हो सके तो 1 से 2 बार इस चीज को लिखो कैसे नंबर को हम लोग खेल रहे हैं उसको देखो। राइट हमने तीनों को किस तरह से सेट किया उसको देखो ना। नंबर जो 2ab 2bc 2ca था सबके नंबर्स को एक दूसरे से इंटरचेंज करना पड़ा मेरे को। राइट सो नाउ व्हाट इज कमिंग इन दिस क्या आ क्या रहा है मेरे पास आ रहा है 2a माइनस b 0 होना चाहिए 3a माइनस c 0 होना चाहिए 3b माइनस 2c 0 होना चाहिए। राइट सो यहां से a 2a इज इक्वल टू b आ गया राइट यहां से 3a इज इक्वल टू c आ गया यहां से 3b इज इक्वल टू 2c आ गया। क्या रेशियो प्रपोर्शन का कुछ कमाल दिखाया जा सकता है एबीसी के लिए क्या होगा एबीसी का रेशियो ए और बी का तो रेशियो यहां दिख रहा है a बाई बी इज इक्वल टू 1:2 राइट ए सी का रेशियो यहां से दिख रहा है 1:3 राइट और बी सी का यहां से दिख रहा है 2:3 राइट क्या बोला जाए ए बी सी का यहां से और यहां से दोनों से देख के क्या रेशियो हो सकता है a:b 1/2 है b:c 2/2 So 2:4:6. 1:2:3 है 1:2:3 यही रह जाएगा ना बेटा 1:2:3 राइट 1:2:3 राइट सो अगर मैंने 1:2:3 ले ली कोई नंबर ले लिया x तो a की वैल्यू x हो गई तो b की वैल्यू 2x होगी c की वैल्यू 3x होगी। निकालना क्या था हम लोगों को 2a प्लस 3b बाई 5c कुछ ऐसा था राइट 2a का मतलब होगा 2 into x प्लस 3 इंटू बी का मतलब होगा इंटू एक्स अपॉन 5 इंटू 3 इंटू एक्स 8/15 राइट 2 प्लस 6/15 वेरी गुड 8/15 काफी सारी चीजें यहाँ पर आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सबसे जरूरी जो था ये कॉची सॉल्व इनइक्वलिटी कहलाती
बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के एग्जाम के लिए, बट IUQM में वो नाम कॉसी सॉस नहीं देगा आपको, आपको सिंपली इसी तरह से कुछ यूज करने को देगा। तो हम लोगों ने केवल होल स्क्वायर के टर्म से एक बहुत प्यारा सा इनइक्वालिटी भी सीखा है, एंड जिसको यूज करने का तरीका है वो भी सीखा। अभिजय कुछ पूछना चाह रहा बेटा? क्लियर हुआ? जील कुछ पूछना चाह रही है बेटा? क्लियर है? अमृतराज ठीक है? पर्स हो गया बेटा? वेरी गुड, अच्छा क्रैक किया। जयेश ठीक है? सो ये इसके क्वेश्चन पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो आप लोग करके रखना है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग फिर से यहां से स्टार्ट ले पाएंगे, राइट? ABC आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। Integers, right? A to the power 5B minus AB to the power 5, एक नंबर ये दिया। सेकंड नंबर B to the power 5C minus BC to the power 5। थर्ड नंबर मैंने दिया C to the power 5A minus CA to the power 5, right? There must be one that is divisible by 8। ये 3 नंबर मेरे पास दिए हुए हैं। इन 3 नंबर में एक नंबर तो हमेशा और हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। है तो बहुत ही सिंपल, राइट? लेकिन फिर भी हम लोगों को राइट। Sir, we have to prove this, right? Yes, बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलते हैं। ये क्वेश्चन करना है आपको, राइट? एंड उसके आगे हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आई हैव टू स्टार्ट। हाँ, आई होप कि आज काफ़ी सारी नई चीज़ें आपने एंजॉय किया होगा, राइट? सो कीप डूइंग दिस, राइट? मैं क्वेश्चंस आपको को अलग से सेंड कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू।